ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اپنے سارے سوالوں، سارے دردوں، ساری تھکن کے ساتھ خاموش بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک دل کے اندر ایک انتہائی گہرا خیال ابھرتا ہے، کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب انسان تھک چکا ہو، لوگوں سے، رشتوں سے، دنیا کی دوڑ سے، دل کے دھوکوں سے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اس کو بنا شرط، بنا بدلاؤ، بنا فائدہ بس محبت کرے، اور یہ محبت صرف ایک ہی ہستی سے مل سکتی ہے، اللہ۔ لیکن انسان پھر بھی ڈر جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس کے عمل بہت کمزور ہیں، وہ بار بار ٹوٹتا ہے، گر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، خطا کر دیتا ہے۔ تو اس کے دل میں سوال اٹھتا ہے، کیا میرے جیسے گنہگار سے بھی اللہ محبت کر سکتا ہے؟ سنو، اللہ کی محبت انسانوں جیسی نہیں، اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق سزا دے سکتا ہے، لیکن بندے کو مکمل طور پر چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ مخلوق کی طرح بدلے نہیں مانگتا۔ اللہ بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی جانتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے پلٹتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ بندے کی کمزوریوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بندے کی آنکھ سے بہنے والا ایک سچا آنسو بھی اللہ کی رحمت کو اس کے قریب کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کی محبت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا دل زندہ ہو، چاہے عمل کمزور کیوں نہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ 7 نشانیاں جانیں گے جو قرآن و حدیث نے بتائی ہیں، جو ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ کن لوگوں پر اللہ کی محبت اترتی ہے، کون وہ خوش نصیب بندے ہیں جن پر اللہ اپنی محبت نازل فرماتا ہے، اور کیا ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یقین جانو، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، اگر تمہارے دل میں یہ سوال جاگا ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے، تو یہ خود ایک نشانی ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 1، اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، یعنی اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ مگر متقی کون ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جس کے ظاہری عمل بہت مضبوط ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک متقی وہ ہے جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، جو گناہ کے قریب پہنچ کر بھی صرف اللہ کے خوف سے رک جائے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ متقی ہونا یہ نہیں کہ انسان کبھی غلطی نہ کرے، متقی وہ ہے جو غلطی کے بعد فوراً پلٹ آئے، جس کے اندر ندامت ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت باقی ہو۔ دنیا ظاہر دیکھتی ہے، مگر اللہ دل کے اندر کی جنگ دیکھتا ہے۔ وہ لمحہ دیکھتا ہے جب انسان گناہ کے سامنے کھڑا ہو اور نفس اسے زور سے دھکیل رہا ہو، لیکن دل کے اندر سے ایک نرم سی صدا اٹھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ رک جائے۔ یہی رک جانا، یہی دل کی ہچکچاہٹ، یہی اندر کا خوف، یہی تقوی ہے۔ متقی وہ ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا تھا مگر اللہ کی خاطر چھوڑ دے، جو غصہ کر سکتا تھا مگر ضبط کر لے، جو جھوٹ بول کر بچ سکتا تھا مگر سچ کا انتخاب کرے، جو تنہائی میں بھی غلط چیز سے اپنی نظر ہٹا لے۔ یہ چیزیں شاید دنیا کو نظر نہ آئی، مگر اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے، تمہاری کوشش دیکھتا ہے، تمہارا اپنے نفس سے لڑنا دیکھتا ہے۔ اللہ کامل لوگوں کو نہیں، سچے دل والے لوگوں کو چاہتا ہے۔ متقی وہ بندہ ہے جو ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے، جو کمزور ہو کر بھی اپنے رب کی محبت نہیں چھوڑتا، جو غلطی کرے مگر دل میں کہے، یا اللہ میں کمزور ہوں مگر میں تیرا ہوں۔ اور اللہ ایسے دل کو کبھی رد نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی خاطر خود کو تھام لے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے، اس کی زندگی میں نور بھر دیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نشانی نمبر 2، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، واللہ یحب الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن صبر کا مطلب صرف چپ رہ جانا نہیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان تکلیفوں میں بھی اللہ سے امید نہ چھوڑے، دل کے ٹوٹنے کے باوجود زبان پر شکوہ نہ لائے، اور حالات بگڑنے کے باوجود یہ یقین قائم رکھے کہ میرے رب کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو حالات سے نہیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی بیماری، اپنی محرومی، اپنے ٹوٹے خواب، اپنے گرے ہوئے حالات، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ میں راضی ہوں،
जो तूने दिया वो भी बेहतर, जो ले लिया वो भी बेहतर, जो रोक रखा है वो भी बेहतर। ऐसे दिल पर अल्लाह की मोहब्बत नाजिल होती है। सब्र करने वाला इंसान दुख महसूस करता है, आंसू बहाता है, तकलीफ झेलता है, मगर अल्लाह से नाराज नहीं होता। वो दुआ मांगता रहता है चाहे देर हो जाए, वो उम्मीद बांधे रहता है चाहे रास्ता बंद हो जाए। वो टूट कर भी ये कहता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है। यही सब्र है, और अल्लाह ऐसे दिलों को कभी छोड़ता नहीं। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह हमेशा बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन रास्ता खोलता है। कभी रिजकत के दरवाजे से, कभी लोगों के दिलों से, कभी ऐसी मदद से जो इंसान ने सोची भी ना हो। सब्र करने वाला कभी हारा हुआ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब अल्लाह किसी के साथ हो जाए तो फिर उसके खिलाफ दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। यही वो लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। निशानी नंबर 3, अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, यानी अल्लाह भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, बल्कि तवक्कुल ये है कि कोशिश अपनी करे मगर यकीन अल्लाह पर रखे। तवक्कुल वो ईमान है जो इंसान को खौफ से आजाद करता है, जो दिल को ये सुकून देता है कि दुनिया कुछ भी कर ले, जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। तवक्कुल करने वाला इंसान नुकसान में भी कहता है मेरे रब का फैसला बेहतर है, और कामयाबी में कहता है ये मेरे अल्लाह की दीन है। जब एक दरवाजा बंद होता है तवक्कुल वाला दिल घबराता नहीं, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह बेहतर दरवाजा खोलेगा। अल्लाह ऐसे दिलों से मोहब्बत करता है जो हर हाल में उस पर भरोसा रखते हैं, चाहे रास्ता वाजह ना हो, हालात सख्त हों और दुनिया नतीजों के पीछे भाग रही हो। तवक्कुल वो मुकाम है जहां इंसान अपनी कमजोरी मान लेता है और अल्लाह को अपना सहारा बना लेता है। और जब अल्लाह किसी का सहारा बन जाए तो फिर कोई चीज नामुमकिन नहीं रहती। यही वो दिल हैं जिन पर अल्लाह अपनी मोहब्बत नाजिल फरमाता है। निशानी नंबर 4, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, यानी अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। गौर करो, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो कभी गुनाह नहीं करते, बल्कि फरमाया कि वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो गुनाह करके बार बार उसकी तरफ लौट आते हैं। यही अल्लाह की रहमत की सबसे खूबसूरत निशानी है। लोग तुम्हें गलती पर छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह गलती पर भी तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खुले रखता है। इंसान गुनाह से लुत्फ ले सकता है, मगर गुनाह के बाद बेचैनी, दिल की चुभन, रूह की बेकरारी, ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल से हिदायत की रोशनी अभी छीनी नहीं। तौबा कोई रस्मी अल्फाज नहीं, तौबा वो लम्हा है जब इंसान अपनी कमजोरी को सच्चाई से मान लेता है और कहता है या अल्लाह मैं गलत था, मुझे माफ कर दे। ऐसा टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत महबूब होता है। अल्लाह तौबा करने वाले के मायजी को मिटा देता है, उसकी गलतियों को छुपा देता है और उसके दिल में नई रोशनी डाल देता है। जो बंदा गिरता है मगर वापस अल्लाह ही तक आता है, वो अल्लाह के सबसे प्यारे बंदों में शामिल होता है। निशानी नंबर 5, अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। कुरान कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। एहसान सिर्फ ये नहीं कि इंसान बड़े बड़े काम करे, एहसान वो है कि इंसान छोटे काम भी अल्लाह की रजा के साथ करे। एहसान वो है कि तुम किसी टूटे हुए दिल को एक लफ्ज से सहारा दे दो, किसी की गलती को माफ कर दो, किसी की कमी को छुपा लो, किसी के बारे में बदगुमानी न करो, किसी जरूरतमंद को चुपके से दे दो, किसी गरीब को सिर्फ चीज नहीं एहतराम दो और ये एहसास दो कि वो भी काबिल इज्जत है। एहसान वो है कि तुम किसी को नीचा दिखा सकते हो मगर अल्लाह के खौफ और उसकी रजा के लिए छोड़ दो। एहसान वो है कि तुम्हारे पास गुस्सा हो मगर तुम नरमी से जवाब दो। अल्लाह ऐसे दिलों से मोहब्बत करता है जो सख्त दुनिया में भी नरम रहते हैं, जो बुराई के मुकाबले में अच्छाई का इंतखाब करते हैं, जो नफरत के माहौल में मोहब्बत बांटते हैं। एहसान दरअसल इंसान के किरदार का सबसे खूबसूरत रूप है, वो रूप जिसमें इंसान अपने नफ्स से ऊपर उठकर किसी के लिए आसानी पैदा करता है।
जब बंदा अल्लाह की खातिर दूसरों के लिए आसानी बनता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी में वो आसानियां डाल देता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। दुनिया याद ना रखे, लोग कदरदान ना हो, लेकिन अल्लाह देखता है, अल्लाह जानता है और अल्लाह एक छोटी नेकी पर भी अपनी मोहब्बत अता करता है। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह अपनी मोहब्बत नाजिल फरमाता है क्योंकि वो दुनिया में उसकी रहमत के नुमाइंदे बनकर चलते हैं। निशानी नंबर 6, अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, यानी अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं होता, इंसाफ इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में भी होता है। इंसाफ ये है कि इंसान अपने दिल में किसी के बारे में नाह का फैसला न करे, किसी की बात सुने बिना उस पर लेबल ना लगा दे, किसी के हक में ज्यादती न करे, किसी को तकलीफ न पहुंचाए, किसी का हक न खाए। इंसाफ ये है कि इंसान अपने गुस्से, अपनी पसंद और अपने मुफाद को एक तरफ रखकर सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ा हो। इंसाफ ये भी है कि तुम अपने साथ इंसाफ करो, अपने ईमान के साथ बेवफाई न करो, अपने नफ्स को गलत रास्ते पर मत धकेलो, अपनी रूह पर जुल्म न करो। अल्लाह उसे पसंद करता है जो हर बात में अदल चाहता है, यहां तक कि अपने दुश्मन के लिए भी फैसला करते हुए इंसाफ को कायम रखे। इंसाफ खौफ नहीं, किरदार होता है। जब इंसान के अंदर ये अदल पैदा हो जाता है तो उसका दिल नरम हो जाता है, उसकी जबान पाका हो जाती है, उसकी नीयत साफ हो जाती है। अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है क्योंकि इंसाफ करने वाला दुनिया में अल्लाह के हुक्म ए अदल को जाहिर करने वाला होता है। और जब अल्लाह किसी बंदे के दिल में अदल की तौफीक डाल दे तो फिर वो बंदा अकेला नहीं रहता, वो अल्लाह की मदद और हिदायत के नूर में चलता है। इंसाफ इंसान को अजमत देता है और अल्लाह के कुर्ब का दरवाजा खोलता है। यही वो लोग हैं जो अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हैं। निशानी नंबर 7, अल्लाह पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत करता है। कुरान कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, यानी अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। पाकीज़गी सिर्फ जिस्म की नहीं होती, पाकीज़गी रूह, नीयत और दिल की भी होती है। अल्लाह को वो दिल पसंद है जिसमें हसद ना हो, जिसमें बुग़ज ना हो, जिसमें नफरत जमा ना हो, जो दूसरों की बुराइयों से खाली हो, जो नीयत में साफ हो और अखलास से भरा हो। पाकीज़गी ये है कि इंसान अपनी जबान को गईबत, बहुतान और फजुल बातों से बचा ले, अपने दिल को नफरतों से पाक रखे, अपनी नीयत को दुनिया की लालच से आजाद करे। पाकीज़गी ये भी है कि इंसान अपनी इबादत को रिया से बचाए, अपने आमाल को दिखावे से महफूज रखे और अपना हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए करे। अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है जिसका दिल साफ हो, वो दिल जो लोगों के सामने कुछ और ना हो और अल्लाह के सामने कुछ और हो। जब दिल पाक होता है तो अल्लाह उस पर अपनी रहमत और हिदायत का नूर डाल देता है, उसके अंदर सुकून उतार देता है, उसकी रूह को मजबूत करता है। पाक दिल वाले लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत, एक अजीब सी रोशनी, एक अजीब सी कशिश होती है। ये सब अल्लाह की मोहब्बत की अलामतें हैं। अल्लाह पाक लोगों को पसंद करता है क्योंकि पाक दिल उसकी रहमत के बर्तन होते हैं और अल्लाह अपनी रहमत उसी दिल में डालता है जो साफ हो, नरम हो और अल्लाह के लिए झुका हुआ हो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल में उतरी हैं, अगर तुमने इन अल्फाज में अपने रब की रहमत की खुशबू महसूस की है, अगर तुम्हें लगा कि अल्लाह वाकई तुम्हारे करीब है और उसकी मोहब्बत तुम्हारी रगों में उतर रही है, तो फिर इस सफर को यहीं मत छोड़ना। दिल की इस रोशनी को कायम रखो, अपने रब की तलाश जारी रखो और इस चैनल के साथ जुड़े रहो क्योंकि यहाँ हर लफ्ज तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए लिखा जाता है। यहाँ हर बात तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए कही जाती है। तो आओ इस रोशनी के सफर में मेरा साथ दो। अगर इन अल्फाज ने तुम्हारे टूटे दिल को थोड़ा सा भी सहारा दिया है, अगर तुम्हें लगा कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, अगर ये पैगाम तुम्हारी रूह को छू गया है, तो फिर इस मोहब्बत को आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये बातें किसी और टूटे दिल तक भी पहुंच जाएं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि शायद अगली वीडियो में वो जवाब हो जिसकी तुम बरसों से तलाश कर रहे हो। शायद अगली वीडियो में वो सुकून हो जिसके लिए तुम रातों को जागते हो। शायद अगली वीडियो में वो पैगाम हो जो तुम्हें अल्लाह के और भी करीब कर दे। तो आओ, दिल से सुनो, दिल से जानो, दिल से जुड़ो और अल्लाह की मोहब्बत के इस सफर में जनून मंजिल का हिस्सा बन जाओ।